Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717117, and 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन। आप जुड़ गए हैं मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23717117 और 23717106। दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिवादन। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद प्राची, धन्यवाद राजेश और आकाशवाणी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। श्रोताओं, चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस। Cabinet approves rupees 10,000 crore Startup India Fund of Funds 2.0 to boost venture capital ecosystem. Rupees 1 lakh crore Urban Challenge Fund to drive market-led urban transformation also gets approval. Benchmark domestic equity indices end week with losses. Sensex slumps over 1.1%, Nifty drops nearly 0.9%. And Wall Street wraps up week with major cuts amid artificial intelligence spending concerns. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी। 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड को भी मंजूरी मिली। देश के प्रमुख सूचकांक सप्ताह के अंत में नुकसान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1.1% से अधिक गिरा, वहीं निफ्टी में लगभग 0.9% की गिरावट दर्ज की गई और वॉल स्ट्रीट इस सप्ताह एआई से जुड़ी चिंताओं के बीच भारी नुकसान के साथ बंद हुआ। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first headline story. In a major boost to India's growing startup ecosystem, the Union Cabinet has approved the establishment of the Startup India Fund of Funds 2.0 with a total corpus of 10,000 crore rupees for the purpose of mobilizing venture capital for the startup ecosystem of the country. Addressing the media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnaw today said that the scheme is designed to accelerate the next phase of India's startup journey by mobilizing long-term domestic capital, strengthening the venture capital ecosystem, and supporting innovation-led entrepreneurship across the country. Also, the Union Cabinet has approved the launch of the Urban Challenge Fund,
with a total central assistance of 1 lakh crore rupees. Central assistance will cover 25% of the project cost, subject to raising minimum 50% of the project cost from market. This will lead to a total investment of rupees 4 lakh crore in urban sector in the next 5 years, marking a paradigm shift in India's urban development approach from grant-based financing to market-linked, reform-driven and outcome-oriented infrastructure creation. Mr. Vaishnav also announced that the last cabinet meeting at South Block was held yesterday and future cabinet meetings will now take place at Seva Tirth. Sharad, how important is the Fund of Funds 2.0 and what purpose will this serve? Well, there was 1.0 Startup Fund, if you remember. That was also for 10,000 crores, which was when Startup India was launched. I think that has been a great success. We've seen so many unicorns being made. We've seen a total number of startups registered now crossing 200,000. India is amongst the top 3 startup ecosystems in the world. And I think this 2.0 will provide further impetus. I must tell you that startup is the whole, shall I say, the framework of startup is very dear to Prime Minister's heart. Correct. And I think we'll see a lot more unicorns in the making in the times to come. आगे बढ़ेंगे, खबरों पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आइए जुड़ते हैं अपने पहले कॉलर से. इनका नाम है अनिल और ये जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से. गुड इवनिंग सर. पुलिस सर, बाय प्रोफेशन आई एम ए डॉक्टर एंड आई एम 64 years of age. जी. My wife is 59 and she is also a doctor. Okay. We both are in private practice. My both sons, one is settled in America and he has started earning, and younger son is Royal Bank of Canada. All right. But my concern is this: we are having enough PPF of 1 CR plus. We are having FD of 50-70 plus, and we have some mutual funds and this your equity, but it is around 7 to 8 lakhs. सर मेरी एक LIC पॉलिसी अभी मैच्योर होने वाली है जी. अभी अवर ओन हाउस, तो ओन हाउस है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, बस दोनों सन की मैरिज करनी है. मेरा एक LIC पॉलिसी अभी 20 लाख का मैच्योर होने वाला है एंड स्टिल वी आर वर्किंग. तो मैं उसको कहाँ पार्क करूँ उस 20 लाख को, और मैं सीनियर सिटीजन को ब्लॉक नहीं करना चाहता. तो सर मुझे सजेस्ट करें कि जो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन है, बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए मैं मनी को कहाँ. Thank you, sir. Anilji, that was very, I mean, the details revealed by Rajesh and Prachi, I would like to say very personalized details revealed, because I think Anil is aware, shall I say, Dr. Anil is aware that investment advisory is personal, although there is a disclaimer given in the beginning of the show that, you should always consult your registered professionals. But then, based on the information given by Dr. Anil, I think you are fairly safely parked. He says about 50 to 17 FDs. I would say probably the FD component is slightly higher. Normally what we recommend is FDs to be about 20%. Keep your liquidity in hand. I think, Anilji, you should also look at some of the post office schemes. And if your horizon is about 5 years or 3 years, I think some of the post office schemes can be, because you said you're just on the verge of being 60. So I think, or you're over 60 probably. Your wife is on the verge of being 60. So I think senior citizens scheme can be where the return is almost 8%. So some of the post office schemes can be looked into. And of course, mutual funds. I think your component of mutual funds seems to be 7-8 lakhs, which is in proportion to your total portfolio. It's a bit lower. So maybe you can consider some mutual funds. And on Sunday, I think there's a dedicated show on mutual funds. So you can always आप उसको सुन सकते हैं, वहां पर भी सलाह ले सकते हैं. थोड़ा सा अनिल जी को मैं जनरल राय देना चाहूंगा, प्राची और राजेश की इजाजत से, कि थोड़ा सा और फैला के रखें, क्योंकि अभी जो समय आया है बहुत थोड़ी अनिश्चितता है. तो what we are recommending in this situation is कि आप मल्टी एसेट एलोकेशन कीजिए. और ये जब मैं मल्टी एसेट, ये सभी के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा खोल के बोल रहा हूं. ये मल्टी एसेट एलोकेशन का ये अर्थ नहीं कि आप मल्टी एलोकेशन फंड में करिए. मेरा मतलब है आप 20% म्यूचुअल फंड्स में, 20% किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके, स्टॉक्स में, थोड़ा सा रियल एस्टेट, आ रहा हूं, मुझे पता है गोल्ड की बात तो हो, आजकल ना हो, ये हो नहीं सकता. 20% गोल्ड में और 20% एफडीज में. तो डॉक्टर अनिल, आइडियल तो ये 5 होंगे. अब आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी में कहां से आ जाएगा, तो रीट और इनबिट को आप कंसिडर कर सकते हैं, जहां पर छोटा पैसा भी प्रॉपर्टी में जाता है. तो मैं आपको सलाह दूंगा, थोड़ा सा और फैला दीजिए इसको. आपने लिक्विडिटी थोड़ी ज्यादा रखी हुई है, 50-70 लाख. इतने पैसे जनरली एक साथ जरूरत पड़ते नहीं है. हाँ, इनके बेटों की शादी है कि उन्होंने जरूर जिक्र किया, पता नहीं कब रिश्ता हो जाए, तो रिश्ता हो गया तो शायद
उन्हें इसलिए बचा के रखे होंगे, तो वो बात है तो अलग है। पर अगर अभी रिश्ता तलाश में है तो थोड़ा सा और आप फैला सकते हैं। बिल्कुल शरद, जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। इनका नाम है अमित और ये है दिल्ली से। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए अमित। हाँ नमस्कार सर कोहली सर, नमस्कार जी। नमस्कार अमित। सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि हम जैसे कोल प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं जी। तो फिर हम विदेश से, अमेरिका से कोल आयात क्यों करें, पहली बात। दूसरी बात ये सर कि एक ही हफ्ते में और एक ही दिन में 12 से 10% की गिरावट आ जाती है अचानक से ना सर, तो थोड़ा सा डर सा लगता है कि ले तो ले गए, फंडामेंटल तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली एक ही दिन में सडनली फॉल इतना आता है एआई इफेक्ट की वजह से सर। वो क्या कहते हैं, आईटी सेक्टर में इतने गिरावट आई है, पूरे हफ्ते महीने में नहीं आती, एक दिन में आ जाती है, डर भी लगता है सर जी। चलिए, आपने कोल की बात करी अमित। देखिए, जिस चीज में हम आत्मनिर्भर हैं वो हम आयात नहीं करेंगे। ये तो सरकार का भी बार बार बयान आ रहा है, और जो ट्रेड डील्स के डिटेल्स निकल के आ रहे हैं उसमें साफ साफ कहा गया, जैसे डेयरी हमें नहीं चाहिए, हमारे यहाँ डेयरी पर्याप्त मात्रा में, हम दुनिया के टॉप 2-3 बल्कि टॉप डेयरी प्रोड्यूसर में इस समय, तो हमें वहां पर घी, बटर, मिल्क ये सब नहीं चाहिए। और अगर कोल में हम सेल्फ सफिशिएंट है तो हमें कोल भी नहीं चाहिए। पर एनर्जी की और वैकल्पिक गैस होती है, क्रूड ऑयल है, उनकी बात की जा रही है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए, जिस चीज में हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में वो हम नहीं मंगाएंगे, ये तो पक्का है। दूसरा, आपने कहा कि आईटी में, देखिए स्टॉक मार्केट्स क्या होता है, मुझे लगता है कल मैंने इस पर बहुत विस्तार से किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक शो किया है, जो आईटी में एंट्रोपिक एआई को लेके अंदेशा जताया जा रहा है। मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ी सी बहुत जल्दी, ये तो हम जानते ही हैं, हम मार्केट मंत्रा में बैठे हैं, मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, किसी बच्चे की तरह बड़ी फटाफट रिएक्ट करती है। तो कुछ हकीकत कुछ फसाना, हाँ थ्रेट है। जो आईटी कंपनीज रेपिटेटिव काम कर रही हैं, कोडिंग का काम करती हैं, बैक एंड की एचआर सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज है, वहां पर आंच आ सकती है। पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है बहुत सारी हमारी आईटी कंपनीज, अमित आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए तैयार भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आईटी कंपनीज बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं, उनको एआई का पता ही कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। ये थोड़ा सा मार्केट का रिएक्शन एडवांस में होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, ज्यादा भी होता है, तो बहुत विशेष अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव मार्केट का स्वभाव है, और जो लोग ट्रेड नहीं करते हैं अमित, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो आपको इतना प्रभावित नहीं करना चाहिए। हाँ, देखने वाले को जरूर लगता है कि मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, वो उतनी जल्दी रिकवर भी तो कर जाती है। हमारे पास दर्जनों के हिसाब से दृष्टांत है हाल में जब मार्केट ने रिकवर किया। Joining us now is Jitendra from Jaipur. A warm welcome, Jitendra. हाँ, थैंक यू सर। आपने अभी आधा जवाब तुमको मिल गया अभी जो आप बता रहे थे। हाँ जी। तो मेरा यही प्रश्न था कि जैसे मैं निफ्टी 50 के आईटी में जैसे एसआईपी करता हूँ, तो अभी जैसे मार्केट डिप हुआ है तो मैं थोड़ा सा बाई परचेज किया हूँ, तो और कंटिन्यू रखूं। पहला तो ये निफ्टी 50 के आईटी में, और सेकंड है कि निफ्टी 100 के फार्मा सेक्टर में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए जितेंद्र, पहली बात तो मुझे खुशी है, मैं जब राजेश और प्राची की आज्ञा लेके थोड़ा सा किसी सवाल को खोल के जवाब देता हूं, तो उसकी मेरी मंशा यही होती है कि बहुत सारे लोगों के अगर मन में वो डाउट है तो वो एक ही साथ सेटल हो जाए। जैसे आपने, अब मेरा आधा काम देखिए बन गया ना पिछले, अब किसी ने कहा कि आप पिछला जवाब लंबा दे रहे थे, तो यहाँ पर हम किसी विशेष निफ्टी इंडाइसिस पे तो हम नहीं बोलते हैं। आपको पता होगा शुरू में घोषणा की जाती है तो किसी विशेष इंडाइस या किसी स्टॉक पर यहां पर राय नहीं दी जाती है। पर जितेंद्र, आपकी अप्रोच अच्छी है कि बाय ऑन डिप्स, जब लोग ऐसे मौके ढूंढते हैं जब मार्केट नीचे होती है, नहीं तो फिर कहते हैं हमसे फोमो हो गया, हमसे मार्केट निकल गया, अब तो बहुत ऊंची है। तो ओवरऑल आपकी अप्रोच अच्छी है। थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के जरिए, एसआईपी का मतलब जरूरी नहीं म्यूचुअल फंड वाली एसआईपी, एसआईपी में एक तरीका भी होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते रहिए और सेक्टर को बैलेंस करते रहिए। मल्टीपल सेक्टर पे मल्टी एसेट एलोकेशन करिए, मल्टीपल सेक्टर्स के लीजिए। थोड़ा सा स्मॉल कैप, मिड कैप पीछे पिटा है, और तो मुझे लग रहा है उसको भी बैलेंस करिए। 50% लार्ज कैप होना चाहिए और 25% आप मिड कैप, स्मॉल कैप रख सकते हैं। बैलेंस करके चलिए। विशेष इंडाइसेस की तो मैं कार्यक्रम के नियम अनुसार आपको नहीं बता पाऊंगा। जी बिल्कुल। श्रोताओं, अभी तक हमने बात की घरेलू सूचकांकों की, और आपके जितने भी सवाल थे हमने उन्हें भी लिए। लेकिन आइए अब जान लेते हैं कि सेंसेक्स ने, यानी कि हमारे प्रमुख सूचकांकों ने सप्ताह के दौरान कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी इस सप्ताह लगभग 1% लुढ़के। ये गिरावट कमजोर वैश्विक संकेतों और आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चिंताओं के कारण देखने को मिली। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 954 अंक यानी 1.1% से अधिक फिसलकर 82,627 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 223 अंक यानी लगभग 0.9% गिरकर 25,471 पर बंद हुआ।
इस बीच विस्तृत बाजार सूचकांकों की अगर बात करें तो ये कारोबारी सप्ताह मिला जुला रहा, जिसमें मिड कैप इंडेक्स 0.4% से ज्यादा गिरा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.8% की बढ़त दर्ज की गई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया इस सप्ताह $1 की तुलना में 33 पैसे कमजोर होकर 90 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। और हमारे अगले कॉलर सीधा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। केशव इनका नाम है। केशव जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जैसे हमारे बैकफुट अच्छा, आप बैकफुट हो गए, पहले फ्रंट फुट पे काफी हम लोगों को परेशान किया। मैं ये तो चाहूंगा कि ये कितना बैकफुट में रहेंगे, और हमारे अभी ये जो गोल्ड खरीदना चाहिए। चलिए केशव की आवाज थोड़ी सी फोन की कट रही थी, पर ये फ्रंट फुट बैक फुट से मुझे लग रहा था शायद ये ट्रम्प साहब की बात कर रहे हैं, ऐसा मैं गेस कर रहा हूं। मुझे लगा कि गोल्ड की बात हो। नहीं, गोल्ड की बात इन्होंने बाद में करी, पर पहले ये फ्रंट फुट बैक फुट, आजकल T20 का भी सीजन चल रहा है, पर तो मुझे लग रहा है वो टर्मिनोलॉजी हमारी भाषा शैली में आ जाती है, पर शायद ट्रम्प साहब की बात कर रहे थे। देखिए, किसी भी देश को मुझे लगता है कि जो जमीनी हकीकत होती है उससे आपको रूबरू होना पड़ता है। आप जमीनी हकीकत से हटके, और ये हर देश का तरीका होता है, वो पहले दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि जितना मनवा लें। दो डील का मतलब ये होता है कि कुछ आप मान लीजिए, कुछ हम मान लेते हैं, गिव एंड टेक होता है। तो शायद ये, क्योंकि मैं ज्यादा खोल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं गेस कर रहा हूं कि शायद ये फ्रंट फुट बैक फुट T20 पे तो पूछ नहीं रहोगे, कार्यक्रम मार्केट मंत्रा है। गोल्ड का इन्होंने पूछा, तो गोल्ड का मैं कहूंगा कि गोल्ड इस समय $5,000 और $5,050 के करीब एक टेक्निकल चार्ट्स पे बेस बन रहा है। पीछे 1-2 दिन पहले 4900 भी चला गया था, पर अभी एक बेस 5000 पे आके खड़ा हो गया। मैं समझता हूं ये जो गोल्ड की प्राइस की स्टेबलाइजेशन, ये बहुत हेल्दी है। तो इस समय जो निवेशकों को लग रहा था मेरी ट्रेन निकल गई, मेरी बस निकल गई, मैं तो चढ़ ही नहीं पाया उसमें, जब वो $5600 पहुंच गया था, या भारतीय रुपए में 1,80,000 पहुंच गया था, अभी 1.5 लाख 1,60,000 के बीच में है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए, अगर आप गोल्ड का शौक रखते हैं, तो लंबे वक्त के लिए आप ETF के माध्यम से उसको ले सकते हैं, और एक साथ नहीं लगाना चाहिए। राजेश, प्राची, मैं कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को आपके माध्यम से, एक साथ लोग लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, फिर आप करेक्शंस का फायदा नहीं उठा पाते हो, सारे पैसे आप लगा बैठे हो। तो कई बार बहुत लोग मुझे मिले जिन्होंने 1,70,000 जब था तो उस समय खरीद लिया, वो तो पता नहीं उनको लग रहा है आएगा भी नहीं आएगा। मुझे लग रहा है लंबे अंडरटोन अभी भी बुलिश है। लंबे सोने के साथ सोना है, पहला सोना है, दूसरा सोना नींद वाला सोना है। बिल्कुल। गुजरात से हमारे साथ धीरज जुड़ रहे हैं। धीरज जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल था कि GCC और ऑफिस स्पेस वर्किंग के सेक्टर में अभी हमें निवेश करना चाहिए क्या? एक तरफ तो AI डिसरप्शन है, ले ऑफ की खबर आ रही है, और दूसरी तरफ हमारे इंडिया में रियल एस्टेट भी बूम कर रहा है, GCC में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऑफिस स्पेस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और विदेशों से भी कई कंपनियां निवेश कर रही है। तो इस सेक्टर में अभी अगर निवेश करना हो तो कुछ क्लैरिटी अगर आप दे पाए तो सर। थैंक यू। देखिए धीरज, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने रीट्स के बारे में सुना हो, जिसको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं, वहां पर 1-2 कंपनी से, हम क्योंकि यहाँ नाम नहीं लेते हैं तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, उनके SPVs भी हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स हैं, जो वो ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, पहले भी जब कोविड आया था और वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले, तो ऐसा लग रहा था अब ऑफिसेज में कौन आएगा, ऑफिसेज खाली होने शुरू हो गए थे, कि वर्क फ्रॉम होम का नया कॉन्सेप्ट उस समय आया था घर बैठ के, और आज देखिए अब ऑफिस स्पेस की फिर शॉर्टेज महसूस की जा रही है। तो मुझे लगता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ऐसा लग रहा है हमको कि AI शायद सारे ऑफिसेज को खाली कर देगा, घर बैठ के फिर काम करेंगे, पर वो इतनी ज्यादा डिमांड आती है, इतने तरीके की नई इनोवेशंस होती हैं, तो मुझे शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा महसूस हो, पर लॉन्ग टर्म में ऑफिस कहीं नहीं जाने वाले। हम भी तो ऑफिस बैठ के ही इस समय आपके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ एक जमाने में हम घर पे करते थे, मुझे याद है 2020 से सब अपने अपने घर पर होते थे, आज हम वापस स्टूडियो में हैं। तो ये आई थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो चलता रहता है। ऑफिस स्पेस में लॉन्ग टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, खासकर Tier 2, Tier 3 सिटीज में, जहां पर बहुत सारी कंपनीज अब रीलोकेट कर रही हैं अपने आप को। कुछ हद तक हम मतलब कि अवलोकन कर सकते हैं कि इस तरीके से AI इम्पैक्ट करेगा, उस तरीके से करेगा। मुझे लग रहा है हम AI को, there is a fear of redundancy। हाँ, मुझे लग रहा है हम थोड़ा सा AI को लेके ज्यादा डर रहे हैं हम, कि हमें निगल जाएगा, हमें खा जाएगा। इतना है, थोड़ा बहुत है, पर इतना नहीं है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब वो आएगा तो अपने आप सोल्यूशन निकल आएगा, सेटल हो जाता है। जी। Moving on, Wall Street ended on a subdued note as fears surrounding artificial intelligence overshadowed the cooler than expected inflation data.
Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average increased 0.1% and the S&P 500 eked out a marginal gain, while the Nasdaq Composite Index lost over 0.2%. For the week, all three major indices posted sharp losses. The Nasdaq tumbled 2.1%, the S&P 500 sank 1.4%, and Dow dropped over 1.2%. On economic front, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported that the Consumer Price Index rose 0.2% in January, taking the annual inflation rate to 2.4%. दिल्ली से हमारे साथ राज सिंह जुड़ रहे हैं। राज, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार, अपना रेडियो सेट की वॉल्यूम बंद करें। एक सेकेंड। हेलो जी राज, अपना सवाल पूछिए। सर कोहली जी से मेरा क्वेश्चन है, अभी बजट से कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने जो सिगरेट मेकिंग कंपनी थी उसका ऊपर जीएसटी बहुत बढ़ा दिया था और सिगरेट मेकिंग कंपनीज के शेयर्स दे करेक्टेड टू 52 वीक लो जी। एंड आई वांट टू सीक एडवाइस ऑफ कोहली जी दैट शराब पीने वाले और सिगरेट पीने वाले क्या एकदम से वो बंद कर देंगे, मतलब to use these products, और उनके कंपनीज के प्रॉफिट्स will tumble down? Should we buy the shares of cigarette making companies? Do you advise? ढैया साहब ने क्षमा करे राज सिंह जी, देखिए इसमें ये देखना है क्योंकि ये सिन गुड में आता है। कोई भी जब कानून पास किया जाता है तो उसमें उसको बैन नहीं किया जाता है पर उसको डिस्करेज किया जाता है, या आपको सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो मुझे लग रहा है ये करना स्वाभाविक है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इसका सेवन देश में बढ़े और लोगों की सेहत का नुकसान हो। तो इसमें कोई मुझे जहां तक इनकी शेयर्स की प्राइसेस हैं वो उनकी सेल के हिसाब से रिएक्ट करेगा। थोड़ी सी प्राइस इनइलास्टिक होती है इन चीजों की डिमांड, कितनी भी कीमत हो जाए जो लोग पीते हैं पीते। खैर मैं अब आई थिंक मुझे शराब सिगरेट का इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा विस्तृत तौर पर विवरण करने की जरूरत नहीं है, पर यह सच है कि सरकार की मंशा है कि इसको कम लोग इस्तेमाल करें। बैन नहीं किया जा रहा है, मुझे लग रहा है यही पीने वालों को इससे तसल्ली रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के एक दिन के दौरे के दौरान 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाई। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। ये सेतु गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत के 4 शहरों के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत 225 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें गुवाहाटी के लिए 100 बसें, नागपुर और भावनगर के लिए 50-50 बसें और चंडीगढ़ के लिए 25 बसें शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने मोरन बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर को 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मंत्रा जी। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। आकांक्षा इन्वेस्ट है जिसका नाम अभी ऑप्टिमस इंफ्राकॉम हो गया है, तो सर जी उसका फोलियो नंबर है, तो अभी हम उसको कैसे मतलब कन्वर्ट करवा सकते हैं, ले सकते हैं? देखिए दिनेश, हम यहाँ पर आपको शुरू में कार्यक्रम अगर आप नियमित रूप से सुनते हैं, शुरू में एक बात बोली जाती है, कंपनी स्पेसिफिक हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। आप किसी कंपनी विशेष का पूछ रहे हैं, पर जनरल मैं आपको वैसे बता देता हूँ, अगर फोलियो नंबर चेंज होता है तो आप एनएससी की या बीएससी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उसमें पुराना नाम और नया नाम दोनों दिया होता है, वहां से आप इसको पता लगा सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका, इसको आप गूगल भी करेंगे तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। Should we, Prachi just read the story of Prime Minister inaugurating and launching projects worth 5,450 crore rupees in Assam. How do you see the development of Assam taking place through these projects, and which of these you see as the real game changer in the state? राजेश, हम शरद के पास वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मैं आपका प्रोग्राम काफी टाइम से सुनता हूँ और आपका वो इंटरव्यू में वो बहुत अच्छा लगता है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे
कि मैंने कुछ पैसा उसमें इसी मतलब फंड में लगा रखा है जी, बैंक के थ्रू। तो सर जी जैसे कि 80-85 के बीच में चल रहा है, इससे आगे बढ़ नहीं रहा, तो मैं उस पैसे को निकाल लूं या क्या करूं? और निकालूं तो उसको मैं कहाँ पे लगाऊं? रवि जी, आपका सवाल बहुत थोड़ा सा वेग है। आपने कहा बैंक के थ्रू किसी फंड में लगा रखा है। अब देखिए, या तो हम मुद्दे की बात यह कि वो बढ़ नहीं रहा है। हाँ, बढ़ नहीं रहा है। हो सकता है कोई ये किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे होंगे, हो सकता है कोई सेक्टर ऐसे में लगाया है जो अभी कुछ दिन से बढ़ा नहीं है। तो रवि जी देखिए, अब क्योंकि हम स्पेसिफिक अभी तो ना तो आपने नाम बताया ना हम पूछेंगे, तो मुझे लग रहा है आप लंबे समय के लिए बने रहिए। और नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, सेक्टर रोटेशन होता है। सेक्टर रोटेशन का आसान भाषा में समझे कि कभी कोई सेक्टर भागने लगता है, कभी कोई सेक्टर भागने लगता है, कभी कोई मिड कैप भागता है, कभी स्मॉल कैप, कभी लार्ज कैप। तो इसलिए आप बने रहिए लंबे वक्त के लिए। मैं समझता हूं अगर म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो लंबे 5 से 10 साल का हम लोग नजरिया रख के चलते हैं। अब ये नहीं पता रवि जी ने कब लगाया था, कितने दिन हो गए हैं, कौन सा फंड है, तो इसलिए हम तो जनरल जवाब ही दिया जा सकता है। Coming back to PM inaugurating projects. I think the Seven Sisters, they are very close to my economic analysis, I would say, Rajesh, because when it comes to Assam, it borders a lot of western, eastern side of the neighbors that we have. It is extremely crucial because development of Northeast has been very close to Prime Minister's heart. Now we have a dedicated team in the ministries who look after Northeast. There is a minister who looks after. There are a lot of people who are dedicatedly working for Northeast. So I think this fund allocation is further going to boost the infrastructure of Assam, and it will increase the connectivity, because it was once upon a time being felt that these probably states are cut off from rest of the country and they are not integrating. The economic development is not balanced, as far as these states are concerned. I think that's no more the situation. I've been to these places, Assam, Meghalaya, Tirupur, all the places, Tripura. I find that they are as good and as beautiful as the rest of the country. In fact, in some ways more beautiful than rest of the country. And it's all thanks to the government schemes and the attention it's been getting over time. Moving on, the global crude oil prices edged higher on Friday, supported by signs of slowing U.S. inflation that eased supply concerns, even as OPEC Plus signals a potential resumption of production increases. Yesterday, Brent crude futures settled over 0.3% higher at $67.75 per barrel, while WTI crude futures added nearly 0.1% to close at $62.89 per barrel. However, both benchmarks posted weekly declines after falling nearly 3% on Thursday, following comments from the US president that Washington could reach a deal with Iran within the next month. For the week, Brent fell about 0.5%, while WTI declined 1%. A deal on the anvil means a lot for the world. It does, but, they've been varying news coming, one day it feels that something will happen, the other day it feels nothing's going to happen, then we hear that another ship has moved to the coast of Iran and bordering. So I think it's a very, very fluctuating kind of situation. Like a pendulum, it's been fluctuating both ways. Until something conclusive comes out, very difficult to comment if we can look forward to a very peaceful times as far as the West Asia is concerned. शरद, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर डालेंगे आर्थिक सुर्खियों पर। Cabinet approves rupees 10,000 crore Startup India Fund of Funds 2.0 to boost venture capital ecosystem. Rupees 1 lakh crore Urban Challenge Fund to drive market-led urban transformation also gets approval. Benchmark domestic equity indices end week with losses. Sensex slumps over 1.1%, Nifty drops nearly 0.9%. And Wall Street wraps up week with major cuts amid artificial intelligence spending concerns. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.